Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about consumer markets and consumer buying behavior. Let's start with the definition of consumer behavior. Consumer behavior is a study of how individuals, groups, and organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy their needs and wants. To start, let's first of all define कि consumer क्या चीज़ होती है. We have already discussed that, but let me remind you once again कि consumer means that person, that individual, or a group or organization that buys a product for their own consumption. मतलब कंज्यूमर वो होता है जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, ना कि वो उसको आगे सेल करे या एज अ रॉ मटेरियल ऐड उसको यूज़ करके दे मेक समथिंग एल्स ऑफ इट. एनीथिंग दैट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड पर्सनली बाय देम. ये है डेफिनेशन कंज्यूमर बिहेवियर की. Consumer की. Now, talking about consumer behavior, in very simple words, we mean कि जो consumer होता है हमारे पास, how he actually behave, उसका behavior क्या होता है. Now, what is that behavior that we are talking about? It is how they select, how they buy, how they use, and how they dispose of any goods or services that they are actually availing for satisfaction of their needs and wants. ठीक है. सो कंज्यूमर बिहेवियर में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे कि जो कंज्यूमर होता है वो जिस तरह से बिहेव करता है उसकी रीजंस क्या हैं और किस बेसिस पे डिफरेंट किस्म के कंज्यूमर्स डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं एंड वो तमाम क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस बिहेवियर पर इफेक्ट करते हैं. बारी बारी हम देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बायर बिहेवियर. ठीक है. ये हमारे पास इट स्टार्ट्स विद कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस. ठीक है. कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या चीज़ है कि व्हेन एवर एज अ कंज्यूमर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वी बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस. अनकॉन्शियस होता है, वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, बट वी देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स जो कि हम यूजुअली फॉलो करते हैं व्हेन एवर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट अ प्रोडक्ट. सो जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज प्रॉब्लम रिकग्निशन. प्रॉब्लम रिकग्निशन क्या होता है? इन इन नॉर्मल टर्म्स प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं कि जब कोई इशू आ जाए, कोई मसला आ जाए. But in terms of marketing or in terms of business, a problem is basically an unanswered question. ठीक है. एक unanswered question होता है, एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसका सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल ना हो. इस चीज़ को हम कहते हैं बेसिकली प्रॉब्लम. समथिंग दैट डज नॉट हैव अ सोल्यूशन और अ क्वेश्चन दैट डज नॉट हैव एन आंसर और a situation that does not have an appropriate plan of action. ठीक है. So problem recognition से the process is started. Problem recognition क्या होती है? Whenever we get aware के there is a certain need that is not being fulfilled, that is not being satisfied. ये होती है problem recognition. So in the first step, what we do, we realize that we have a certain deficiency. उसके बाद in order to take care of that deficiency, in order to fulfill that need, in order to get answer to that unanswered question, what we do some information search. Information search about what? Information search about the possibility that how we are actually going to solve that problem, how we are actually going to get answer to that question. ठीक है. इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं, वी लुक एट इट इन अ बिगर पिक्चर. उसके बाद व्हाट वी डू द इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. After the information search, what we get different possible alternatives. We get different possible alternative solutions to our problem. We get different possible alternative answers to our questions. We get different possible alternatives of how we are actually going to solve a certain problem or satisfy a certain utility. ठीक है. उसके बाद we take the purchase action and after that we have post purchase behavior.
Let's discuss this process with the help of an example. आप सबके पास मोबाइल फोन्स, obviously you all would be using mobile phones. So let's start with the problem recognition. Problem ये इस केस में क्या था कि बिफोर आपके पास मोबाइल फ़ोन था, इससे पहले कि आपने एक मोबाइल फ़ोन सिम खरीदी, the problem was that there was not a good way to communicate with your friends, with your family in a very efficient way. This was a problem. ठीक है. प्रॉब्लम ये था कि जब आप घर से बाहर जाते थे, जब आप दोस्तों को कम्युनिकेट करना चाहते थे, सो आप नहीं कर सकते थे. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस नीड और सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सर्च की, आपने मार्केट देखी, आपने वेबसाइट्स देखे. ठीक है. आपने सोचा कि यार ठीक है, नाउ आई हैव टू बाय अ सिम इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद पीपल. आपने इंफॉर्मेशन सर्च की. इंफॉर्मेशन हम कैसे सर्च करते हैं? वी हैव डिफरेंट पॉसिबल sources of information. You can have information, you can get information from your peer group, from your family, you can get information from online sources. बेतहाशा किस्म के हमारे पास sources हैं where we can get information. After the information search, you people landed with possible alternatives. आपके पास यूफोन था, आपके पास जैज था, आपके पास टेलेनोर था, आपके पास जोंग था. ठीक है. So these were the four alternatives that you actually got from the information search. फिर आपने इन alternatives को evaluate करना था on the basis of what? It depends on person to person. For some people connectivity is more important, for some people the prices are more important. कुछ लोगों के लिए ये एक रीज़न हो सकती है कि यार तमाम फैमिली के पास यू फ़ोन है तो मैं भी यू फ़ोन ख़रीद लेता हूँ. It depends on person to person that what is the criteria of this evaluation. ठीक है. आफ्टर एवेल्युएशन आपने क्या किया कि यू जस्ट लैंडेड ऑन अ डिसीजन कि मैंने यू फोन की सिम खरीदनी है. नाउ इन पोस्ट परचेज बिहेवियर बेसिकली आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. either you will be satisfied from the product or you will be dissatisfied. If you are satisfied from the product, हमारी प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाता है and you start using that product. If you are not satisfied with the product, it means that you are having post purchase dissonance. Post purchase dissonance is a phenomena when you are not satisfied with a certain product after you buy it, after you use it. You get second thoughts about things. आपके पास अक्सर इस तरह के थॉट्स आए होंगे कि यार ये सिम नहीं खरीदनी चाहिए थी, वो वाली ले लेता. ये वाली शर्ट नहीं खरीदनी चाहिए थी, वो जो दूसरी शर्ट पड़ी थी वो खरीद लेता. ठीक है. So this is the post purchase dissonance and this occurs when you are not 100% satisfied from the product. So this is the basic layout of the consumer buying process. This is a basic model of consumer behavior which starts with the environment. उसमें हमारे पास different factors आ जाते हैं. Then in the middle we get the consumer, जो buyers black box इसको यहाँ पे बोला गया है. It means buyers characteristics क्या हैं, उसकी personality traits क्या है, उसका वो किस तरह से एक buying decision तक पहुँचता है. And then ultimately we land on buyer's response. ठीक है. कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम जियोग्राफी टू जियोग्राफी. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच बेसिकली चेंज दिस कंज्यूमर बिहेवियर? अगर ये एक बायोलॉजिकल चीज़ होती, नेचुरल चीज़ होती, तो कंज्यूमर बिहेवियर सबका एक जैसा होता. बट कंज्यूमर बिहेवियर इज लर्नड. It is not natural, it is learned and it is affected by many factors. Factors बेतहाशा हैं, काफ़ी सारे हैं, but we will look at a few major factors. Cultural factors, social factors, personal factors and psychological factors. ये चार basic factors हैं जो कि consumer behavior को influence करते हैं. Let's start with the very first one, that is known as culture. We all know what culture is. Culture is basically a set of norms and values, a set of beliefs that we carry with us, and ये culture area to area change करता है, nation to nation change करता है. ठीक है. From time to time it also changes. पाकिस्तान की ही अगर हम बात करें, so 1980s में एक और तरह का culture था. Nowadays we are having a different type of culture. So culture is a set of norms and values and beliefs and attitudes जो कि हम carry करते हैं, and culture usually flows from generation to generation.
अब पॉइंट ये है कि कल्चर कैसे अफेक्ट करता है। कल्चर एंड सब कल्चर बेसिकली एक तरह की चीजें हैं, बट सब कल्चर इज जस्ट अ सबसेट ऑफ अ कल्चर। जिस तरह वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है वो एक कल्चर है, बट विद इन स्टेइंग द पाकिस्तानी कल्चर हमारे पास सब कल्चर्स हैं। वी हैव द बलोची कल्चर, वी हैव द सिंधी कल्चर, वी हैव द पंजाबी कल्चर एंड वी हैव द पश्तून कल्चर। ठीक है, सो कल्चर जो सेट्स ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब कल्चर कैसे अफेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को? ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड बिलीफ्स जो हम अपने माइंड में कैरी करते हैं, इट डज इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी एक्चुअली कंज्यूम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कल्चर्स के लिए होते हैं। नॉट एवरी कल्चर कैन एक्चुअली यूज इट। आई गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे यहाँ ईद पे एक कल्चर है दैट वी वेयर शलवार कमीज या हम कोई कुर्ता वगैरह का ड्रेस पहनते हैं। हमारे यहाँ ईद का एक कल्चर है। इस बात को ज़हन में रखा जाए कि कल्चर का एक काफ़ी बड़ा जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो रिलीजन। रिलीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कल्चर पे। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप जर्मनी में जाके एक कुर्ता की शॉप खोलेंगे, सो व्हाट डू यू पीपल थिंक, इज दैट अ गुड आइडिया? नो, इट्स नॉट। द रीजन इज दैट वहाँ का कल्चर इस चीज के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, सो कल्चर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के ऑन हाउ वी एक्चुअली बिहेव। कल्चर के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जिस तरह हमारे यहाँ रमज़ान आता है तो हमारा वो जो कंज्यूमर, जो हमारा बाइंग पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ईद के टाइम पे हमारा पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हम मिठाइयों की दुकानों पे देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। ठीक है, बड़ी ईद के दौरान वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एनिमल मार्केट्स, इन एनिमल फार्म्स। जो ईद की मंडियाँ लगती हैं वहाँ पे हम टाइम गुजारते हैं। ठीक है, एक और आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के एड्स देखते हैं। हम शैम्पू के एड्स देखते हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स के एड्स देखते हैं, हम बेतहाशा किस्म के एड्स देखते हैं, बट कभी भी आपने जॉनी वॉकर्स वोडका का एड हमारे टीवी पे नहीं देखा होगा। ना, व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज नॉट इन लाइन विद आवर कल्चरल वैल्यूज़। हमारी कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती, इसलिए वी डोंट सी दैट थिंग अराउंड ओवर हेयर। ठीक है, लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएं, आप नॉन मुस्लिम स्टेट्स में जाएं, so you can see these things very easily and you can obtain these things very easily. So now why is this difference? This difference is because of the culture. कल्चर की वजह से हमारा बिहेवियर नहीं है इस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदने का, सो वी डोंट डू दैट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशल क्लास की। सोशल क्लास क्या चीज़ है? सोशल क्लास बनती है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप बन जाता है। इसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें एजुकेशन लेवल भी आ जाता है, इसमें वेल्थ भी आ जाती है, इसमें लाइफस्टाइल भी आ जाता है। ये जो तमाम चीज़ें हैं दे कंबाइन एंड दे मेक अ सोशल क्लास। ठीक है, so social class also have an impact over consumer behavior. Obviously, an educated and a wealthy person would spend in a different way than a person who is not educated and a person who is not wealthy. ठीक है, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में हमारे पास रेफरेंस ग्रुप्स आते हैं, हमारे पास फैमिली आती है, हमारे पास रोल्स एंड स्टेटस आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। वी हैव द ग्रुप्स दैट वी एक्चुअली बिलोंग टू, जिस ग्रुप्स का हम हिस्सा होते हैं। वी हैव एस्पिरेशन ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिसका हम पार्ट तो नहीं होते बट वी समहाउ वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, नाउ वी पीपल आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टीम, लेकिन अगर देखा जाए तो एवरी वन ऑफ अस, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, दे डू हैव एन इम्पैक्ट ओवर हाउ वी एक्चुअली बिहेव। अगर आप एक दोस्तों का ग्रुप जाता है और आप कहते हैं कि यार हमने 6 बंदे कहते हैं कि यार पिज्ज़ा खाना है, और जो एक सातवां बंदा है वो कहता है कि नहीं यार मैंने जो है तो बर्गर खाना है,
या मैंने चिकन कढ़ाई खानी है, या मैंने किसी ट्रेडिशनल टाइप रेस्टोरेंट में जाना है। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि वी गो विद द मेजॉरिटी, एंड वो जो एक बंदा होता है जो कि ट्रेडिशनल फूड खाना चाह रहा था, ही ऑल्सो एंड अप ईटिंग पिज्जा। अब ये क्या हो गया, ये जो एक बंदा था उसका अपने ग्रुप की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग ट्रेडिशनल टू ईट ही एक्चुअली हैड अ पिज्जा। इसी तरह फैमिली का भी हम पे इम्पैक्ट होता है, हमारा रोल एंड स्टेटस क्या है। एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए वी एक्वायर डिफरेंट रोल्स। वी हैव रोल ऑफ अ ब्रदर, वी हैव रोल ऑफ अ सन, वी हैव रोल ऑफ अ फादर, we have role of a friend, we have role of a teacher. तो every person in a society actually performs a certain role. तो जब आप different roles पर जाते हैं, so in every role you actually behave in a different way. As a student आप different तरीके से act करते हैं, but when you grow up and when you become a bread earner of a family, you will act in a different way. When you become a father, you will act in a different way. ठीक है, so ये तमाम चीज़ें impact डालती हैं on how actually a consumer behaves. उसके बाद बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स की। हमारी पर्सनल फैक्टर्स में क्या आता है, हमारी एज आती है, हम लाइफ साइकिल के किस पार्ट में है, हमारी ऑक्यूपेशन आती है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन आती है, हमारा लाइफस्टाइल आता है, हमारी पर्सनालिटी आती है। अब ये तमाम चीज़ें इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट डू हैव एन इम्पैक्ट ओवर हाउ वी एक्चुअली बिहेव। एज, इट मैटर्स अ लॉट। एक खास एज तक आप एक और टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं। व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू आर इन योर टीन एज, आप कहते हैं कि यार मैं एक स्पोर्ट्स कार लूँ, मैं एक नई गाड़ी लूँ, मैं जो है तो एक शो ऑफ टाइप एटीट्यूड बनने में होता है। बट व्हेन यू ग्रो अप अ लिटिल मोर, यू बिकम मोर प्रैक्टिकल, एंड आपकी जो थिंकिंग होती है, जो आपका बिहेवियर होता है, इट गेट्स मॉडिफाइड। ऑक्यूपेशन हैज़ द सेम स्टेटस। इकोनॉमिक सिचुएशन, ऑब्वियसली इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है। It really depends on your economic situation, that how you actually spend and how you behave. If you are economically well off, तो तब आप काफ़ी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आप यूजुअली नहीं करते। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। हमारी मोटिवेशंस, हमारी परसेप्शंस, हमारी लर्निंग्स, हमारे बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, ये तमाम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑन हाउ अ कंज्यूमर एक्चुअली बिहेव। हाउ मोटिवेटेड यू आर, आप मोटिवेशन के किस लेवल पे हैं, हाउ यू एक्चुअली परसीव थिंग्स, हाउ यू एक्चुअली टेक थिंग्स। आपके पास्ट इस पे बड़ा मैटर करता है कि हाउ यू परसीव थिंग्स एंड हाउ एंड व्हाट यू हैव एक्चुअली लर्नड। परसेप्शंस जो हमारी बिल्ट होती हैं, दे गेट बिल्ट अप विद एक्सपीरियंस। तो ये, और हमारे जो पर्सनल बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स होते हैं, दे ऑब्वियसली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So all these things combined, they have a very deep impact over consumer behavior. और जो पॉइंट मैंने earlier raise किया था, and we are ending up on that again, that consumer behavior is not natural, it is learnt, and it gets modified by your surroundings, by your environment, by your personal factors. इनके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं which can have an impact over consumer behavior, but these were the basic factors. ठीक है, this was all for today's lecture. If you have any questions, please ask me in our live session. Allah Hafiz.